Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasin, your teacher for CSE 330 e-commerce course. Dear students, today I would like to cover the chapter number 6, and we have already discussed the first part of chapter number 6, which is the e-commerce marketing. And this chapter number 6 is with reference to the edition number 7, that is the edition that was printed in 2011. मैंने आपको कहा था कि there is a possibility कि आपकी बुक में chapters का जो sequence है that might be different. ठीक है, याद है ना? तो चलिए इसका part 1 we have already done, and today I would like to discuss the part number 2 of this chapter. I would like to discuss this particular topic, and there is another, that is the technologies that play their vital role in the marketing of the e-commerce. So you remember, this was the last slide जहाँ पे के we stopped, and there was a bit confusion in the last line. तो मैंने आपसे कहा था कि मैं next lecture के अंदर मैं इस confusion को दूर कर दूंगा कि we were discussing why internet users do not buy online. The people याद है कि people shop online but buy offline. तो वो हमने reasons discuss किए थे कि want to see and touch before buying. There are many people who have this habit. Similarly, the people concerns about the personal financial information that might be stolen when the information of the credit card is placed onto the net, even if you provide SSL secure software, and yet the people see that there is a possibility कि अगर जो seller है या जो खुद बिजनेसमैन है, अगर वो ही चीटिंग पे आ जाए तो देयर इज़ अ चांस कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बिजनेसमैन खुद ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो उसको लीक आउट करके मिसयूज़ कर सकते हैं. Then the delivery cost, in some part of the countries, or in some countries the delivery cost is too high, so people do not want to buy online just because they are required to bear the additional cost of the product they have purchased. Then they concern that the return will be hassle. Although मैंने आपको बताया था कि there are number of companies जिन्होंने अभी offer किया है कि if you don't like it you can simply return our product, and you are not forced to pay for that particular product, और आप बगैर कुछ पे किए भी products को वापस कर सकते हैं. But still there is a concern. So then next is prefer to research online then buy from the स्टोर. ये भी है बिट, और राइट साइड पे परसेंटेज दी हुई है जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, और डेट वाज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम ई मार्केटर इन 2011 में जो ये सर्वे कंडक्ट हुआ था. Then no need to buy products online. People think that कि we are not supposed to buy it online. वो ज़ाहिर है हर आदमी की एक अपनी मर्जी है. And then this is the last point. Can't speak to a sales assistant in a person. This is perfectly all right. Obviously ये text book है, इसमें इतनी बड़ी mistake नहीं हो सकती. So इसका मकसद ये है कि people want to talk to the salesperson. जब वो purchase करने जाते हैं तो make the number of queries to the salesperson, और वो चाहते हैं कि salesperson जो है वो उसको उनको सेटिस्फाई करे, और आफ्टर देयर सेटिस्फैक्शन दे देन टेक द प्रोडक्ट, अपने सामने पैक कराते हैं और फिर उसको वो बाय आउट करते हैं. ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन में ये एक्टिविटी हो नहीं सकती, दे कैन नॉट टॉक द सेल्स पर्सन डायरेक्टली, सो दे टेंड टू इग्नोर द बाइंग ऑन साइट. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. Trust, utility and opportunism in online marketing. There are two most important factors that can influence or shaping decision to purchase online. Number one है utility and number two is the trust. अब utility क्या है? Utility with reference to the better prices.
कि जनाब वो उनको जो उन्होंने एफर्ट्स की है उसके अंदर if they are able to find out or locate or identify the reasonable prices of the product जो वो परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो प्राइस पे कर रहे हैं अगर वो रीजनेबल है तो yes they have the temptation to buy online. Next, the convenience of handling the site. The buyer or the consumer, it depends upon his or her expertise or how much he feel confident and convenient of using the computer or handling the different websites or confident of using his her personal information, exposing it on the website. That is another feature. Then the response, sometimes there might be a potential buyer, but the website respond very slowly or unable to provide interactivity that the consumer wanted to have or wanted to pose question and wanted to get the answers, then try to search on the website certain information and wanted to get the information very quickly. So these are the one of the prime two factors, that is the utility of the different. अब मैंने आपको utilities के अंदर चीज़ें बताई जो कि under the utility they wanted to see that can influence the consumer to buy online. Second one is the trust. Asymmetry of information can lead to opportunistic behavior of the sellers. Asymmetry आपको याद है ना definition, मैंने बड़ी तफसील से आपको asymmetry के बारे में बताया था. Asymmetry कहते हैं कि information जो है वो symmetrical नहीं है, दोनों ends के ऊपर symmetrical नहीं है. It is not symmetrical on the side of the businessman or the seller and on the other hand on the buyer side. बायर कुछ और अज्यूम कर रहा होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी इंटरप्रिटेशन बायर के हिसाब से डिफरेंट होती है, बट द सेलर इज हैविंग द अपर हैंड हियर. सेलर को बड़ा प्रिसाइजली पता होता है कि व्हाट दे आर सेलिंग, what is the meaning of the information they have placed it on the site, so they can manipulate that. So there is a possibility कि जो seller है they might cheat to the consumer, to the client. So that is another important factor. वो कहते हैं ना अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, खास तौर पर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी. So the clients, online clients are the people जो कि long term आपके clients बन सकते हैं, उनकी आपके साथ association हो सकती है. You can have them many time at your websites and you can make them your regular customers. So how can you do that? तो उसके लिए the seller can develop the trust. सेलर की साइड पर, क्योंकि सेलर के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है. वंस द सेलर कैन डेवलप द ट्रस्ट देन ही और देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव द गुड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ देयर ऑनेस्टी कि वट एवर दे आर सेइंग दे मीन इट. यानी कि कोई अंडर द लाइन चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बाद में कहें नहीं जी आपकी इंटरप्रिटेशन गलत थी, हमारा तो इससे ये मकसद था, हमारा तो इसका ये मतलब था. ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. देन फेयरनेस इन टर्म्स के जनाब जो उन्होंने आपके साथ इंफॉर्मेशन पास ऑन की है वो बड़ी फेयर है, उसकी पैकिंग जो है वो बड़ी प्रॉपर तरीके से आप उसको पैकिंग कर रहे हैं और आप उसमें कोई किसी किस्म का यू आर नॉट सेविंग एनी मनी इन प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड पैकिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी डिस्पैच टू द क्लाइंट. देन द डिलीवरी, कि डिलीवरी की कॉस्ट क्या है, डिलीवरी का टाइम क्या है. अगर ये जो सेलर जो है इन सारी चीज़ों से अपना एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करवेगा देन the seller will be able to influence the customer to purchase online. So ये कहते हैं कि trust, utility and opportunity basically क्लाइंट की साइड से है ट्रस्ट एंड यूटिलिटी और सेलर की साइड के ऊपर एक अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना. अपॉर्चुनिटिज्म इन ऑनलाइन मार्केटिंग, एक अपॉर्चुनिटी बनती है सेलर के पास टू एस्टैब्लिश हिज गुड ट्रस्ट और एस्टैब्लिश, कहते हैं कि दुकान जो है चलाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, बिजनेस को आपको सेटअप करने की भी एफर्ट करनी पड़ती है. सो बोथ साइड्स आर देयर. Then some basic marketing concepts.
बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स द स्ट्रेटजीज एंड एक्शन फर्म टेक टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर टू एनकरेज परचेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो ऑब्वियसली जो मार्केटर्स हैं दे प्लान डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो क्यों बनाते हैं? ताकि वो कंज्यूमर को इनकरेज कर सकें कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो परचेज कर सके. तो ये तो है ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग. और मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग यू एड्रेस द कंपेटिटिव सिचुएशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स. अब वो कंपेटिटिव सिचुएशंस क्या है? आपको ने बताया था कि प्राइस भी हो सकती है कंपेटिटिव, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है कंपेटिटिवनेस, और उनका टाइम भी आप सेव कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं दैट यू नीड टू मार्केट. आपको हर चीज को मार्केट करना है. अगर आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो आपको उसको मार्केट करना है. अगर आप 1 डे डिलीवरी देने हैं तो आपने उसको भी मार्केट करना है. सो यू नीड टू एड्रेस ऑल द कंपेटिटिव सिचुएशन दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर क्लाइंट्स through the marketing, and that is the part of the marketing. Then you need to seek through marketing you need to seek to create unique high differentiated products or services that with reference to the other products available or produced or supplied by वन ट्रस्टेड फर्म. यानी कि ट्रस्टेड फर्म कैसे होगी? ऑब्वियसली फर्म की ट्रस्ट जो उस वक्त स्टैब्लिश होगा कि जब वो फर्म जो है वो डिफरेंशिएट करेगी अपने आप को. अब डिफरेंशिएट करने को भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था. डिफरेंशिएट, बेस्ट डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली द प्राइस है, नथिंग एल्स. अगर आप प्राइस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप उस प्राइस के ऊपर चीज को प्रोवाइड कर सकते हैं जिस प्राइस पे कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो नथिंग लाइक इट. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऑब्वियसली आपको एक कंपेटिटिव प्राइस आपको चार्ज करनी है ताकि आप उसके जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो उसकी सेलिंग कॉस्ट है, सारी की सारी आपको रिकवर करनी है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो कॉस्ट नहीं है तो फिर बाकी फैक्टर्स जो हैं जो डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी टाइम है, और जैसे कि आपकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर बड़ी अट्रैक्टिव है, टाइम सेविंग है, और आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ हुआ है. तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसको आप मार्केट कर सकते हैं. सो देन यू हैव टू अवॉइड कि आपकी कोई प्रोडक्ट जो है वो जनाब कमोडिटी बन जाए. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और कमोडिटी क्या है? कमोडिटी इज अ गुड. गुड मीन्स कोई प्रोडक्ट या सर्विस. प्रोडक्ट और सर्विस जब वो गुड बन जाती है, और फॉर विच देयर आर मेनी सप्लायर्स, मेनी डीलर्स हु डील्स विद दैट एंड सप्लाइंग मोस्ट प्रोबेबली दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट. एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि हर कोई लेके फिर रहा है सेल आउट करने के लिए. जब मार्केट की जब डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन होगी तो फिर जाहिर है कि उसकी प्राइस लो डाउन होगी. तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसको कमोडिटी नहीं बनना चाहिए. कमोडिटी मीन्स ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जिसके कि बहुत ज्यादा सप्लायर्स भी मौजूद है और हर कोई एक आइडेंटिकल किस्म की चीज बेच रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं रहेगी, वो कमोडिटी बन जाएगी. ठीक है. और बेसिकली the second aspect which is ideally having the unmatched feature set. अब प्रोडक्ट का फीचर सेट क्या है? प्रोडक्ट जो है उसके सर्टेनली देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स, लेकिन ये फीचर सेट जो है बजाते खुद एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं चाहूंगा कि डिटेल से अगली 1-2 स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन करूं आपको. Feature set basically is a bundle of capabilities and services offered by the product or service. किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपने बंडल क्या कुछ किया हुआ है, उसके साथ आपने क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन किए हुए हैं, और वो है जनाब 3 किस्म के फीचर. सबसे पहले तो कोर प्रोडक्ट है, नंबर 2 है एक्चुअल प्रोडक्ट. अब इनमें बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं भी आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है. और तीसरा है जनाब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट जो है इज द कोर बेनिफिट दैट द कस्टमर रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट. मसलन द टेलीफोन, द कस्टमर बाय अ टेलीफोन, तो ऑब्वियसली वो एक कोर प्रोडक्ट है. उसका काम जो है फोन को सुनना और फोन को सर्विस प्रोवाइड करना.
ٹھیک ہے. اگر ٹی وی پرچیز کیا ہے تو ٹی وی کا کام ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ٹی وی چینلز کو آپ نے واچ کرنا ہے. اف یو ہیو پرچیزڈ اے ریڈیو دین یو وانٹ ٹو لسن دی ریڈیو اسٹیشنز اور ریڈیو سروسز ود دی ہیلپ آف دیٹ پرٹیکولر ریڈیو. تو یہ تو ہو گئی اس کی کور پروڈکٹ. وہ پروڈکٹ جس پرپز کے لیے دی گئی ہے وہ والا پرپز جو ہے وہ میٹ کرے. اب ایکچوئل پروڈکٹ کیا ہے؟ دی سیٹ آف کریکٹرسٹکس دیٹ ڈیلیور دی پروڈکٹ کور بینیفٹس. یعنی کہ اگر ٹیلی فون لیا ہے تو وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جس کے تھرو آپ ٹیلی فون کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو ایگزامپل یہاں پر ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ وائڈ اسکرین دیٹ کنیکٹس ٹو دا انٹرنیٹ. آپ کا کیو موبائل ہے، بہت سارے موبائلز کا ایڈ آتے اور اس میں کہتے ہیں اٹس اے بگ اسکرین، اٹ کنٹینز اے ٹارچ، اٹ کنٹینز پاورفل میوزک سسٹم، ایک آڈیو سسٹم از اے ویری اسٹرانگ، اور اس کا ساؤنڈ جو ہے از اے ویری کمپیٹیٹو ساؤنڈ، یو کین پلے ویڈیوز آن یور موبائل فون. تو بیسیکلی جو سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں دیٹ کانسٹیٹیوٹ دیٹ پرائم پروڈکٹ اور جو اس کے کور بینیفٹس کو ڈیلیور کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکچوئل پروڈکٹ. سمجھ میں آیا نا؟ ایک تو ہے کور پروڈکٹ، جس مقصد کے لیے پروڈکٹ بھی تھی وہ مقصد کیسے اچیو ہوگا. دوسرا ہے ایکچوئل پروڈکٹ کہ اس مقصد کو کس طریقے سے ہاؤ دے اچیو دیٹ. مقصد تو اچیو ہو گیا. فون تو آپ ایک ایسے آرڈنری فون سے بھی کر سکتے ہیں جس کی ایک بڑی چھوٹی سی اسکرین ہے اور جس کے اندر آپ نمبر کو صرف ٹائپ کر کے وہ اس کو چھوٹی سی ایل سی ڈی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک فون ایسا ہے کہ جس میں آپ نہ صرف یہ کہ فون کر سکتے ہیں بلکہ اس کے بہت سارے آگمنٹڈ فیچرز آتے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آپ اس کے اندر سے کنوینئنٹ بھی کال کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کی بن گئی ایکچوئل پروڈکٹ. تیسرا ہے آگمنٹڈ پروڈکٹ. آگمنٹڈ کہتے ہیں کسی چیز کو ایڈ آن کرنے کو. ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہے اس کو آگمنٹ کر دیا ہم نے آگے. تو یہاں پہ آگمنٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایڈیشنل بینیفٹس ٹو کسٹمرز بیونڈ دی کور بینیفٹس. کور بینیفٹس تو چاہیے نا، تو اس کے بعد اس کو ایڈیشنل بینیفٹس جو آپ نے امبیڈڈ کیے ہیں، آگمنٹ کیے ہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں آگمنٹڈ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہے. فار ایگزامپل کہ یو سینڈ اے پرٹیکولر پروڈکٹ اور اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ دیتے ہیں آفٹر سیل سروس دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ وارنٹی دیتے ہیں، آپ اس کی بہترین پیکنگ دیتے ہیں، آپ اس کی ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی فری ڈیلیوری دیتے ہیں. تو دیز آر بیسیکلی کالڈ دی آگمنٹڈ پروڈکٹس دیٹ یو بنڈل اپ ود دی کور پروڈکٹ. اور اگر ہم اس کو پکٹوریل فارم میں دیکھیں تو دیر آر ڈفرنٹ رنگ. سب سے پہلے جو انر موسٹ رنگ ہے دیٹ کیریز دی کور بینیفٹ آف دی کور پروڈکٹ جو ہے. اور اس کے بعد آپ کا ایکچوئل پروڈکٹ جو ہے ایز پرچیز بائی دی کسٹمر، کہ کسٹمر جو ٹیلی فون پرچیز کیا تھا اس کے ساتھ آپ کا یا اس نے ٹی وی پرچیز کیا ہے تو اس کے جو ایکچوئل پروڈکٹ جو اس کے اسپیکس کیا ہیں، فیچرز کیا ہیں، ایڈیشنل فیچرز، وہ آپ اس کو کیسی کتنی اچھی پیکنگ کے ساتھ اس کو فریجائل آئٹم کو گھر تک کیسے پہنچاتے ہیں. دین وٹ آر دا فیچرز، ویدر دا ٹی وی از اے اسمارٹ ٹی وی، ویدر دا ٹی وی از اے 3D ٹی وی، whether the TV has a feature to display the recorded images, means that you can connect your the smart box with your TV. مطلب ڈپینڈنگ کہ اس کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے اس ٹی وی کو دوسرے ٹی وی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دین ویدر دا ٹی وی از بینگ آفرڈ ود دی برانڈ نیم. آپ نے سیمسنگ لیا ہے کہ آپ نے اورینٹ لیا ہے کہ آپ نے سونی ٹی وی لیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ سونی واز نمبر 1 برانڈ اینڈ ناؤ دا سیمسنگ از آلسو کمنگ اپ اور چیلنجنگ سونی. تو برانڈ کون سا آ رہا ہے، اور میں برانڈ کے اوپر جاؤں گا. I will be talking about much more in detail regarding the brands inshallah in the next slide. اس کے بعد ہے augmented products. کیا آپ فری انسٹالیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ؟ کیا آپ اس کو وارنٹی 1 ایئرز یا ایکسٹینڈیڈ وارنٹی 2 ایئرز دے رہے ہیں، 3 ایئرز وارنٹی دے رہے ہیں؟ کیا وارنٹی جو ہے ود دی پارٹس ہے یا وداؤٹ پارٹس ہے؟ کیا وارنٹی میں سیلز مین جو ہے گھر پہ جا کر وارنٹی دے گا یا آپ کو ٹی وی جو ہے وہ آپ کو سروس شاپ کے اوپر لے کر آنا پڑے گا؟ پھر آپ کی ڈیلیوری کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے؟ کیا ہوم ڈیلیوری آپ دے رہے ہیں؟ کیا فری ہوم ڈیلیوری آپ دے رہے ہیں؟ یہ وہ جو چیزیں میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. اور پھر ایک کریڈٹ، آج کل جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی وہ کہتے ہیں
या रिडीम्ड कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, या आप प्रोडक्ट परचेज करवें और उसकी पेमेंट आप 3 मंथ्स में करवें, 6 मंथ्स में करवें, जीरो मार्कअप के साथ करवें या लिटिल मार्कअप के साथ करवें. सो दीज आर दी basically 3 circles that constitute the feature set of any particular product. So each element in the feature can be used to differentiate the product from other product in the market. ये सारी चीजें क्यों हैं? ये सारी चीजें हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं टू फाइंड आउट कि हाउ दिस प्रोडक्ट कुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपेटिटर्स दैट हैव प्लेस्ड इन द सेम मार्केट प्लेस. उसकी वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए फिर हम बता रहे हैं कि तीनों में से कौन कौन से एरिया को मार्केटर्स जो कि आपके बिहाफ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या जिनकी प्रोडक्ट्स है, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, तो वो कोर प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं, वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकता है, और वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं. तो ये तीनों के तीनों जो हर सर्कल के जो एरियाज हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं. अब मैंने बात की थी ब्रांड की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स एंड ब्रांडिंग प्रोसेस. हम तीनों की बात करेंगे. प्रोडक्ट्स जब तक कि वो ब्रांड नहीं बनता, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट ब्रांड कम बनता है. और उसके बाद ब्रांड एंड ब्रांडिंग प्रोसेस क्या है. तो सबसे पहले ब्रांड की डेफिनेशन क्या है. ब्रांड कहते हैं जी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस द कंज्यूमर हैव विद द प्रोडक्ट और विद द सर्विसेज व्हाइल कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेशन उसकी है उसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, कि जनाब ये मैंने जो सोनी की प्रोडक्ट जो है ना परचेज की थी, और सोनी का जो टीवी है वो सबसे बेस्ट टीवी होता है. मैंने एप्पल का लैपटॉप जो है वो परचेज किया है, और एप्पल का लैपटॉप जो है उसके साथ आपकी एक affiliations hai. So basically the most important is the expectations which could be in terms of quality, reliability, consistency, trust, affection, loyalty and reputation. ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं that a consumer have while consuming the product, while using the product जो है उसको पता है कि टीवी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, या उस प्रोडक्ट जो है एप्पल जो है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग, उसकी सर्विस कितनी अच्छी है, वो कितनी रिलायबल है. कभी ऐसा तो नहीं है कि उसका सॉफ्टवेयर हैंग अप हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट कॉल के टाइम पर वो आपका ऑन नहीं होता. उसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, अगर वो एक अच्छा ब्रांड है तो उसकी बैटरी की लाइफ के ऊपर आपको ट्रस्ट होगा कि वो आपको धोखा नहीं देगी. कंसिस्टेंसी कितनी है कि क्या डेली उसकी आप उसके ऊपर एतबार कर सकते हैं, उसकी बैटरी के ऊपर क्या आप वो ट्रस्ट वाला फैक्टर आ गया उसके ऊपर कि कितना ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ. और ये एकदम नहीं आता, वो यूज करने से आता है. और वंस जो कंज्यूमर स्टार्ट वैकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन दे स्टार्ट वैकिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड. फिर वो बड़े उसके साथ फखरिया अपने फैमिली के अंदर बैठकर और दोस्तों की मीटिंग्स के अंदर बैठकर बताते हैं कि जी आई एम यूजिंग दिस iPad and I'm using this Sony TV at my home. So that is their relationship, that particular brand जो कि consumer किसी product के साथ establish कर देता है. तो हर प्रोडक्ट ब्रांड क्यों नहीं है. प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है प्रोवाइडेड कि उसकी ब्रांडिंग की जाए. ब्रांडिंग क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रांड क्रिएशन, यानी कि कन्वर्ट इट फ्रॉम प्रोडक्ट टू ब्रांड. इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग. इसमें सारी चीजें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब ये सारे के सारे फीचर जो हैं आप ले आते हैं, उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, अफेक्शन, लॉयल्टी, रेपुटेशन, ये सारे के सारे वन बाय वन चीजें जैसे 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 कॉन्फिडेंस बहाल होता जाएगा वैसे वैसे ये सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट में आएंगी. तो ये जो प्रोसेस है टू कन्वर्ट अ प्रोडक्ट इनटू अ ब्रांड इज कॉल्ड अ ब्रांडिंग. देन थर्ड है क्लोज्ड लूप मार्केटिंग. अब ये इसको हम मार्केटिंग के हवाले से देख रहे हैं ना कि हम किसको मार्केट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कर रहे हैं, ब्रांड को कर रहे हैं. फिर हम उस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, उसका ब्रांडिंग का प्रोसेस क्या है. तो उसके लिए प्रोसेस के लिए जो सबसे पहले एक और नया कॉन्सेप्ट है वो क्या जाता है क्लोज्ड लूप मार्केटिंग. यानी कि लूप को क्लोज करना है. क्या क्लोज करना है? मीन्स के व्हेन अ मार्केटर्स आर एबल टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस the design of the core product.
based upon the feedback and the research they have conducted and the data they have collected from the market, send it back to the manufacturer कि जनाब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, आपकी इस प्रोडक्ट में क्लाइंट का ये फीडबैक है. जब ये फीडबैक वापस प्रोडक्शन लाइन पे पहुंच जाता है और उसके हिसाब से दे आर बाउंड टू इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ देयर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल Corolla vehicle had a problem in the brake system, in the suspension and brake system combined together, और उसका जो feedback था that was very poor. तो वो जो market का जो feedback था वो marketers ने वापस provide किया उसको Toyota company को कि this is the feedback of your clients. So उसकी basis पे they improved the design, they improved the weaknesses of their product. तो अगर इस किस्म का जो एक process है जिसमें कि लूप कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट को मार्केट में थ्रो कर दिया आपने तो बात खत्म हो गई. नो, उसको फिर उसको देखना है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है क्लाइंट का आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और उस रिस्पॉन्स को आप वापस लेके जब चलते हैं तो वो रिस्पॉन्स जो है उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंप्रूव होती है उसकी. और इसको अगर हम देखें अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं वो आपको ये लूप उसमें भी दिखाऊंगा. नेक्स्ट है कि ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी. ब्रांडिंग तो मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का जो प्रोसेस है उसको ब्रांडिंग कहते हैं. अब ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? अ सेट ऑफ प्लान्स फॉर डिफरेंशिएटिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स. क्योंकि ब्रांड करता ही यही है. अब अगर प्रोडक्ट वो डिफरेंशिएट करनी शुरू कर देगी ना दूसरी प्रोडक्ट के साथ, तो आप जा रहे हैं, यू आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रांडिंग. आप अपनी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं एंड कम्युनिकेटिंग दीज डिफरेंसेस इफेक्टिवली इन द मार्केट प्लेस. कि जो कंज्यूमर का जो फीडबैक है उसको आप कैश कर रहे हैं और उसको मार्केट प्लेस के अंदर आप उसको लेके जा रहे हैं और मार्केटर्स जो हैं वो उसको यूज कर रहे हैं. तो बेसिकली उसको वो प्रोडक्ट से ब्रांड की तरफ लेके जा रहे हैं. तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आप उसको डिफरेंशिएट करें अपनी प्रोडक्ट को. अपनी प्रोडक्ट को जब दूसरी प्रोडक्ट से आप डिफरेंशिएट करने की पोजीशन में आ जाए, ऐसी स्ट्रेटजी आपकी मार्केटिंग की हो गई है, तो इसको हम कहते हैं कि ब्रांडिंग की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं. सो अ ब्रांड कैन रिप्रेजेंट corporate value as an asset. It can be consumers' loyalty or attachment, can be seen as set of associations that consumer have with that particular product. अगर तो ये एसोसिएशन आप establish करने में कामयाब हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एक नया कॉन्सेप्ट है कि ब्रांड इक्विटी. कोका कोला की ब्रांड इक्विटी क्या है, कोई और ब्रांड जो है उसकी इक्विटी क्या है. और इक्विटी क्या होती है? द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रीमियम दैट द कंज्यूमर्स आर willing to pay above that price of that particular product जो है for using that brand product when compared to unbranded products. तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट की प्राइस उनके पास चॉइस है ना कि ब्रांडेड प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट भी यूज सकते हैं. कोर प्रोडक्ट तो दोनों एक ही होगी, ठीक है. एक्चुअल प्रोडक्ट में फर्क होगा और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में फर्क होगा या कोर के अंदर भी फर्क हो सकता है. तो वो जो उसका जो डिफरेंशिएट जो है वो जो कर रहा है उसकी बेसिस के ऊपर क्लाइंट जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है महंगे दामों परचेज करने को तैयार है. क्लाइंट इज रेडी टू पे द ओवर एंड अबव प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द अदर नॉन ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो वो एक एडिशनल प्रीमियम है जो आप ले रहे हैं और उसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी. और जनाब अगर हम इसको देखें अब इस सारी चीज़ों को कि जो प्रोडक्ट से ब्रांड्स कैसे बनता है, वो क्लोज लूप क्या है, तो उसके भी आप देखें. सबसे पहले वी टॉक अबाउट दी कोर प्रोडक्ट, और ये कोर प्रोडक्ट है आपकी. फिर इस कोर प्रोडक्ट को आपने ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट हो गई, फर्ज किया कि कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट है आपकी. उसके बाद आपने इसको ऑगमेंट किया इसको प्रोडक्ट को विद द क्वालिटी, विद द प्राइस, विद द सपोर्ट, विद द रिलायबिलिटी. और ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं जो कि आपने प्रोडक्ट्स को डाले. डिफरेंशिएटिंग फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. अभी मैं नॉन ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहा, फर्ज किया ब्रांडेड ही है तो दूसरी प्रोडक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको उससे विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट्स जो है जो एडवांटेजेस जो उसको मिल रही हैं यहाँ पर. फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इस चीज को वो कैश कर रहा है. क्रिएट द एक्सपेक्टेशन,
इस चीज को कैच कर रहे हैं, और ताकि एक ट्रस्ट, एक अफेक्शन, एक लॉयल्टी, एक रेपुटेशन जो है वो स्टैब्लिश हो जाए, और फिर वो जनाब आपकी जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड प्रोडक्ट के अंदर बन जाती है यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली जब वो ब्रांड बनता है तो मींस दी कंज्यूमर उसको प्रोडक्ट को यूज करता है, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है, और बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर एक्सपीरियंस अब मार्केटर्स जो हैं फीडबैक सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूं वो रिसर्च के जरिए करें या किसी तरीके से फॉर्म फिलअप करवाएं, डेटा कलेक्शन करें, और वो जनाब वापस प्रोवाइड करें उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि उसके डिज़ाइन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट की जाए वो चीज़ें जहाँ पे कि उनको यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है, किसी भी जगह पर इन चीज़ों में जो डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये आप इसको योग को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दीज आर दी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ये पर्पज़ है। ऐसे ही नहीं है कि बस आप इश्तहार बना दें किसी भी प्रोडक्ट का और जस्ट यू रन दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, ऑन रेडियो और ऑन द इंटरनेट। उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, एक पूरा प्लान होता है कि आप कर क्या रहे हैं, और सिंपल प्लान ये है कि प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है। अब अगर ये बात सही है कि सिर्फ प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, तो फिर ब्रांड का क्या करना है? वो भी एक बड़े मजे की चीज है कि उसको रिटेन करते हैं, ब्रांड को रिटेन करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। जिनकी प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड होती है वो ब्रांड बनाने की एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जो ब्रांड बना चुके होते हैं वो अपने ब्रांड्स को रिटेन करवाना चाहते हैं अमंग देयर क्लाइंट्स। सो द मार्केटर्स एम टू क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिफाई फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन कंज्यूमर परसेप्शन, क्योंकि ये जो कंज्यूमर का परसेप्शन है ट्रस्ट और अफेक्शन और लॉयल्टी और रेपुटेशन, इसकी बेस के ऊपर, एंड इस बेसिस के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। तो नेक्स्ट है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये सारी मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन ये है ज्यादा ही, ठीक है ना। सेगमेंटिंग एंड टारगेटिंग, और इसके लिए मैंने एक टर्म है जो मैं भी थोड़ी देर में नीचे यूज करूंगा कि टारगेट द सेगमेंट, ठीक है ना। ये टर्म है, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले लेट्स टॉक अबाउट के सेगमेंट्स। इसको वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर के मार्केट कंप्राइजिंग मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, और जो कस्टमर्स का एक ग्रुप होता है उसको हम एक कस्टमर्स का सेगमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट का भी सेगमेंट हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट का सेगमेंट्स है, कस्टमर का भी एक सेगमेंट हो सकता है जिसको कि हम डेमोग्राफिक भी, वो भी नीचे आ रहा है यहाँ पर, कि यू सीक टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सेगमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स की रेंज है, और विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स। दोनों सेगमेंट्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। सो द मेजर वेज टू यूज टू सेगमेंट टारगेट कस्टमर्स आर, ये हमने बिहेवियर मॉडल जो है उसके ऊपर लास्ट टाइम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। डेमोग्राफिक डिफरेंट ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, एज वाइज भी आप कर सकते हैं, सेक्स वाइज भी, मेल फीमेल, और इनकम ग्रुप के हिसाब से। याद है मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि द एशियन अमेरिकन हैव कैपेसिटी टू स्पेंड $500 बिलियन पर ईयर, लेकिन एज कंपेयर टू द अफ्रीकन अमेरिकन दे हैव द डबल द कैपेसिटी, दे हैव अ $1 ट्रिलियन कैपेसिटी टू दे स्पेंड पर ईयर ऑन द कॉमर्स, और एक्सपेंडिचर उनका है। इसी तरीके से हिस्पैनियंस जो हैं, हिस्पैनियन अमेरिकन जो हैं, दे आल्सो हैव अ $1 ट्रिलियन जो स्पेंडिंग है उनकी पर ईयर की। तो अब सेगमेंट जो है आप किसी भी रेफरेंस से बना सकते हैं उसके लिए, और उसको हमने पिछले लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो उसमें भी टेक्निकल भी, कॉन्टेक्चुअल भी, और बेसिकली आपको उसको उस सेगमेंट को एडजस्ट करना है। वो आप उसको सर्च करके, अब ये सर्च वाली बात को अभी थोड़ी देर रहने दें, अगली चंद स्लाइड्स के अंदर आई विल कम बैक टू दिस, मैं बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स को। सो देन टारगेट द सेगमेंट, वो था ना सेगमेंटिंग, टारगेटिंग। पहले सेगमेंट बनाओ, फिर सेगमेंट को टारगेट करो, और फिर अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करो उस सेगमेंट के अंदर। बात समझ में आई? पहले सेगमेंट एफर्ट करवी, सेगमेंट्स को, फिर उस सेगमेंट को टारगेट किया, अगर वो कस्टमर्स का सेगमेंट है अगर आपका ना। दूसरा भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको हम इसी अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। तो उस सेगमेंट को आप टारगेट करें एंड पोजीशन योर प्रोडक्ट विद इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट फॉर अ गुड, और वो अपनी प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है वो उस सेगमेंट के हिसाब से फिर मार्केटिंग आप उसको करेंगे। आपको पता है कि आप किसको क्या चीज बेचने जा रहे हैं, उसकी आप साइकोग्राफिक
जो है उसके जो इमोशंस हैं उसके साथ आप प्ले करेंगे जाकर। जब आप एक प्रिसाइज ग्रुप की तरफ चले जाएंगे तो फिर आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इस ग्रुप में ग्रुप इन्फ्लुएंसर कौन सा है, लाइफस्टाइल क्या है, इस तरह की चीजों को अपडेट कर सकते हैं। सो विद इन अ सेगमेंट प्रोडक्ट इज पोजीशन एंड ब्रांडेड एज ए यूनिक हाई वैल्यू प्रोडक्ट स्पेशली सूटेड टू नीड दैट पर्टिकुलर सेगमेंट्स। क्योंकि अब प्रोडक्ट को आपने ब्रांड बनाना है तो उसके लिए जनाब ये आपका स्ट्रेटेजी हो सकती है, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आगे मूव कैसे करें, स्ट्रेटेजी बनाएं कैसे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप सेगमेंट कर सकते हैं, सेगमेंट करने के बाद किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, देन यू कैन पुट योर ब्रांड बिटवीन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और फिर उसको प्रोडक्ट से ब्रांड बनाने का प्रोसेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बड़े कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर ताकि आप उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस बढ़ते बढ़ते वो एक इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ भी आप जा सकते हैं। सो आर ब्रांड्स रैशनल? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कोई हवाई बात तो नहीं है, क्या वाकई ब्रांड एग्जिस्ट करते? तो और दूसरी बात ये कि आर दे रैशनल? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि व्हाट अबाउट कोका कोला, और उसकी सारे वर्ल्ड के अंदर कितनी ब्रांडिंग है उस कोका कोला की। ब्रांड कोका कोला ब्रांड बिकता है, इट्स ए नॉरिशिंग ड्रिंक और एकदम से एक एहसास होता है और इसको वो कैश करते हैं। और अभी मैं इसमें हम डिस्कस करेंगे क्विक डिसीजन कि यू हैव टू टेक कौन सी ड्रिंक लेनी है, कोक लेना है भाई, ठीक। सो ऑब्वियस भी है। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर कंज्यूमर बात करें तो आंसर कि वाकई ब्रांड इज ए रैशनल, तो आंसर इज क्वालिफाइड यस। आप हाँ जी ठीक है, इस तरह करके आप कह सकते हैं क्वालिफाइड यस। सो ब्रांड इंट्रोड्यूस मार्केट एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग सर्च टाइम एंड डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। यानी कि क्विक डिसीजन आपने लिया उसका और उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने वो फर्ज किया कि रेफ्रिजरेटर है, उसको ओपन करके अब आप देख रहे हैं कि अच्छा जी कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपको उसमें कोक नजर आती है यू टेक अ क्विक डिसीजन, आपको पेप्सी नजर आती है यू टेक अ क्विक डिसीजन, 7 अप नजर आती है यू टेक अ क्विक डिसीजन। सो 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि दे आर एस्टेब्लिश ब्रांड्स जो हैं। तो यस, ब्रांड्स की मदद से क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, और जब टाइम सेविंग किसमें, डिसीजन मेकिंग में, कि ये ड्रिंक पीनी है कि वो ड्रिंक लेनी है आपने। अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो बिजनेसमैन कहेगा डेफिनेटली यस। व्हाई डेफिनेटली यस? बिकॉज ही इज मेकिंग मनी, द बिजनेसमैन इज मेकिंग मनी। वो कहता है कि द ब्रांड इज ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, जब एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसके रीजंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोअर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आम जबान में, कि किसी आप अपने ब्रांड के ऊपर कस्टमर को कैसे घेर के लाते हैं, हाउ यू अट्रैक्ट डिफरेंट पीपल टू बिकम योर क्लाइंट, टू बिकम योर कंज्यूमर ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोस्पेक्ट टू अ कंज्यूमर, यानी कि जरूरतमंद है, एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, उसको आपको भी पता है कि उसको जरूरत है, तो उस प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को अपने कस्टमर आप बना दें, ये आपने अक्वायर कर लिया वो उसको कस्टमर को, ठीक है। इसको हम कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन, और उसकी आपको कॉस्ट जो है ना वो पे करनी होती है, और उस कॉस्ट को आप अगर लोअर कर लेते हैं किस तरीके से, ब्रांड की मदद से। जो ब्रांड है ना, तो नए आने वालों के लिए जो है उसके लिए पता है कि जनाब ये जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं उसके ऊपर जो नया आने वाला है वो थोड़ा सा इफ एंड बट उसको डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कि वो प्राइस फैक्टर को थोड़ा सा तजब्जब का शिकार होता है, इनडिसीजन का शिकार होता है। लेकिन वहां पे अगर आप ब्रांड को थ्रो करें पूरी अपनी उसकी थ्रस्ट के साथ, तो वो उसका पोटेंशियल क्लाइंट्स को अक्वायर कर लेता है, और ब्रांड जल्दी अक्वायर कर लेता है बाय स्पेंडिंग अ लिटिल अमाउंट। देन द इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन। अब जो कस्टमर आ गया उसको जनाब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रिटेन करना है, जो बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में की थी कि जो प्रोडक्ट को ब्रांड बना रहे हैं वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड है उसकी मार्केटिंग क्यों हो रही है? उसकी मार्केटिंग हो रही है फॉर रिटेंशन ऑफ द clients, retention of the customers. So convincing an existing customer to purchase again and again, again and again. किसी और चीज को ट्राई करने का, जो पेप्सी का क्लाइंट है वो कोई और ड्रिंक ट्राई नहीं करता है, वो बार बार पेप्सी परचेज करता है,
ठीक है। इसी तरीके से जो रेवलॉन है या कोई और ब्रांड है, कॉस्मेटिक्स का कोई ब्रांड है, वो जो ब्रांड जिसका जो पसंद करती हैं लेडीज, वो उसी ब्रांड की कॉस्मेटिक्स जो है ना बार बार परचेज करती हैं, क्योंकि उनके वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई वो स्टैब्लिश कर चुकी हैं उस ब्रांड्स के साथ। सो रिटेंशन ऑफ द क्लाइंट जो है वो ब्रांड में उसको इंक्रीज करती है, ब्रांड्स की जो है। देन सक्सेसफुल ब्रांड कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग लास्टिंग अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज। अब इसको आप अनफेयर कह दें, टेक्स्ट बुक में तो अनफेयर लिखा हुआ है, लेकिन ये अनफेयर नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए एफर्ट्स की है। हाँ, एक दफा एफर्ट हो गई तो चाहे हो सकता है वहां पे अनफेयर कह सकते हैं कि अमृत कोला आ गई आपके पास। अब वो अमृत कोला चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, गोरमे कोला कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपको कितनी ही नॉरिशिंग क्यों ना लगे, कितनी ही रिफ्रेशिंग क्यों ना लगे, वहां पर आप उसको पेप्सी और कोक के साथ आप उसको अनफेयर एडवांटेज है पेप्सी और कोक को, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो शायद इस वजह से जो बुक का जो ऑथर है वो उसको अनफेयर कह रहा है, दो नॉट नेसेसरीली परमानेंट। ठीक है ना ये बात, लेकिन बात ये है कि ये ब्रांड की एडवांटेज तो है। कैन ब्रांड सर्वाइव द इंटरनेट? अच्छा, ये बड़ी एक मिथ है। जब इंटरनेट के ऊपर देयर वाज एक्सपेक्टेशंस, देयर वर सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि जनाब जो ब्रांड्स हैं वो किस हद तक सर्वाइव करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? उसकी एक हाइपोथेसिस थी, उसकी अर्वी पास्टुलेट्स थे, और वो अर्वी पास्टुलेट क्या थे कि लॉ ऑफ वन प्राइस। अब लॉ ऑफ वन प्राइस क्या है? लॉ ऑफ वन प्राइस ये है कि सारी दुनिया में एक प्राइस हो जाए, ठीक है ना। उसको हम आम जबान में मैं कह रहा हूं, नीचे मैंने डेफिनेशन दी है लेकिन समझाने के लिए आपको। सो लॉ ऑफ वन प्राइस मीन एंड ऑफ मार्केटिंग बेस्ड ऑन ब्रांड्स। जो ब्रांड्स का हमने पीछे इतना कुछ कहा जिसकी बेस पे आपकी ब्रांड इक्विटी है और ब्रांड प्रीमियम है और क्लाइंट उसके ज्यादा पैसे देने को तैयार हो रहा है, तो वो ब्रांड को खत्म हो जाएगा। ये एक पोस्टुलेट था एक्सपर्ट्स का, और उनके ख्याल में कि विद द कंप्लीट प्राइस ट्रांसपेरेंसी in a perfect information marketplace, there will be one world price for every product that would emerge. ठीक। अच्छा, अब यहाँ दो एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा। एक मैंने आपको बताया था एसिमेट्री, और एसिमेट्री के मुकाबले में सिमेट्री करवें। अब एसिमेट्री को हम अगर डिस्कस करें कि एसिमेट्री इज द इंफॉर्मेशन डिसबैलेंस्ड, information more available to the seller as compared to the client, क्योंकि seller को precisely पता होता है उसकी information के बारे में। लेकिन एक पोस्टुलेट ये था कि जब इंटरनेट आ जाएगा और देयर विल बी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए। जब उसकी इंफॉर्मेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है विल बी अवेलेबल फॉर द क्लाइंट ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं रहेगी। वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ सेलर के पास है वो बायर के पास भी आ जाएगी। जब वो इंफॉर्मेशन बैलेंस आउट हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी, तो वो सिमेट्री इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो फिर आपका फ्रिक्शनलेस आपका एनवायरनमेंट होगा, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, रुकावट नहीं है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग नहीं है किसी भी किस्म की। सोशल मीडिया में डिस्कशन होगा और बेतहाशा उसके बारे में बात होगी, तो सारे के सारे जो है प्रोडक्ट जो है वो एक लेवल के ऊपर आ जाएंगे उसके लिए। तो ये एक पोस्टुलेट था, ये कह एक मिथ थी ये कि ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट हुआ। इंस्टेड हुआ क्या? ये पोस्टुलेट कि जी इंटरनेट के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा और आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा, ऐसी एक जो पोस्टुलेट था वो नहीं हुआ, बल्कि इंस्टेड हुआ क्या? कंज्यूमर स्टिल पे प्रीमियम प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अभी भी इंटरनेट के ऊपर जो ई कॉमर्स है, जो कॉमर्स है, जो आपकी मार्केट है, वहां पे डिफरेंशिएट होती है। ब्रांड वर्सेस नॉन ब्रांड डिफरेंशिएटेड होती है। प्राइस का डिफरेंस स्टिल देयर। अभी डिस्पर्शन ऊपर जिक्र है, प्राइस डिस्पर्शन इज स्टिल देयर। प्राइस डिस्पर्शन जो है वो बेसिकली कहते हैं, अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, कि ब्रांड और नॉन ब्रांड के दरमियान जो प्राइस का डिफरेंस है उसको कहते हैं प्राइस डिस्पर्शन। सो प्राइस डिस्पर्शन इज स्टिल देयर, और ई कॉमर्स फर्म्स रिलाई हेवीली ऑन ब्रांड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड चार्ज
प्रीमियम प्राइसेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्पर्शन। और ये डिस्पर्शन कैसे है, ये आपके ब्रांड और नॉन ब्रांडिंग उसके भी है। तो वो जो एक पास्चुरेट था ना कि क्या ब्रांड सर्वाइव करेंगे इंटरनेट पे क्यों, इस वजह से कि एक मिथ ये थी कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से और इतनी कन्वीनियंट हुई और इतनी रिचनेस के साथ वो फैल रही है कि वो जो फ्रिक्शन है वो भी खत्म हो जाएगी और एसिमेट्री भी खत्म हो जाएगी। और जब वो सिमेट्रिकल हो जाएगा और हर जगह पे होगा तो सारे वर्ल्ड में किसी भी एक प्रोडक्ट की एक प्राइस हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक, लेकिन ये हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। अब ऑनलाइन जो जिसको कैश कर रहे हैं ऑनलाइन में, वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है जनाब उसके अंदर जो प्राइस डिस्पर्शन जो है, दैट इज सब्सटेंशियल प्राइस डिस्पर्शन ऑन इंटरनेट। ठीक है जी, अच्छा वो मैं भी आपको समझा दिया था कि प्राइस डिस्पर्शन क्या है, कि वो डिफरेंस है हाईएस्ट प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस फॉर ए ब्रांड एंड द लोएस्ट प्राइस फॉर अ नॉन ब्रांड आइटम। सो उसका जो बड़ा एक डिफरेंस है दैट इज स्टिल अवेलेबल, और यही वजह है कि जनाब ब्रांड जो है वो इंटरनेट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं इवन एज ऑफ टुडे। देन एक और टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल हो रही है जिसको कहते हैं लाइब्रेरी इफेक्ट और कैटलॉग इफेक्ट। लाइब्रेरी इफेक्ट और कैटलॉग इफेक्ट क्या है, एक आम आपने मिथ सुनी होगी कि एक छत के नीचे, जन्नत मॉल में एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है, यू कैन बाय एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सिमिलरली यू कैन बाय एवरीथिंग अंडर वन मार्केट प्लेस, यू कैन बाय एनीथिंग ऑन amazon.com रिगार्डिंग बुक्स, सीडीज एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। सो उसको हम कहते हैं कि बिकॉज द बिग प्लेयर्स हैव मेंटेन्ड अ बिग कैटलॉग्स एंड द क्लाइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मूव अराउंड, उन्होंने लाइब्रेरी बना ली है जिसको वो कैश करते हैं फिर के आपको हर चीज जब वहां पर मिल जाती है। तो दैट वो भी एक टैक्टिक्स है जो आपके ब्रांड्स को आप ऑनलाइन सेलर्स जो है उसको ये एक प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी इफेक्ट। तो लाइब्रेरी इफेक्ट बेसिकली क्या है, एन अटेम्प्ट टू अपील टू कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड अंडर वन मार्केट प्लेस। ठीक है, एक छत के नीचे एक मार्केट प्लेस पे, लाइक इन amazon.com। सो के मिथ हमारी पीछे जाते हैं कि कैन ब्रांड्स सर्वाइव ऑन इंटरनेट। यस, वो जो मिथ थी कि लॉ ऑफ प्राइस है वो अगर नहीं हुआ और ब्रांड्स आर सर्वाइविंग, और उसके भी हमने देखा कि जनाब प्राइस डिस्पर्शन भी मौजूद है, और उसके अंदर मुख्तलिफ ये है कि ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग का डिफरेंस भी मौजूद है उसके अंदर, और उसके अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स भी हैं जिसकी वजह से प्राइस डिफरेंस है तो ज़ाहिर है ब्रांड डिफरेंस है, और ब्रांड जो है दे आर सर्वाइविंग ऑन द इंटरनेट। इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज ऑन मार्केटिंग, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका क्या रोल है ऑन दी मार्केटिंग। और उसके अंदर देयर आर 3 बेसिक इम्पैक्ट्स जो हैं। और नंबर 1, स्कोप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस ब्रॉडेंड, स्कोप ब्रॉडेंड हो गया, अभी मैं बताऊंगा कैसे और क्यों। Number 2, richness of the marketing communication increased. Number 3, information intensity of marketplace expanded. पहली चीज तो ये है, अगर आपको याद होगा इन द लेक्चर नंबर 1 इन द शुरू के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के अंदर we talk about ubiquity and we talked about global reach. Ubiquity क्या थी? Anytime, anywhere. यही मैंने डेफिनेशन बताई ना यूबिक्विटी की, कि जनाब ऑन इंटरनेट देयर इज नो टाइमिंग कि जनाब मार्केट जो है विल बी क्लोज्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू मार्केट आफ्टर 9 PM। नो, एनी टाइम एंड एवरीवेयर। आपको एक स्पेसिफिक मार्केट में नहीं जाना बल्कि यू द होल ग्लोब is at your disposal. So जब ये वाला concept है तो that is the major impact on the e-commerce। और ये किसकी बेसिस पे आया? ये जनाब टेक्नोलॉजी वे के आई, इंटरनेट वे कर आया।
जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आपकी यूबिक्विटी बनी और ग्लोबल रीच जो है ना वो बढ़ गई, टाइमिंग भी ख़त्म हो गई और जो बाउंड्रीज थी वो भी ख़त्म हो गई। और ये है नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि टेक्नोलॉजी ने मार्केटिंग के अंदर अदा किया। नंबर 2, रिचनेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड। अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है जिसकी मदद से आपकी जो इंफॉर्मेशन डेंसिटी है, मैंने बताया था ना इंफॉर्मेशन डेंसिटी क्या है, कि जनाब यू कैन अटैच ऑडियो भी लगा दें, एनिमेशन भी लगा दें, वीडियो भी लगा दें किसी उसके साथ, और यू कैन ऐड द कंटेंट्स, सो कीप ऑन एडिंग द कंटेंट्स। तो आप इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेंसिटी आप बढ़ा देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल मिल जाती है कि वो जो यही एक बेसिस थी जिसमें वो लॉ ऑफ प्राइस की हम बात कर रहे थे। लेकिन ये बेसिकली जो है, जो richness of marketing communication increased just because of this internet facilities that are provided. आपकी टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट किया कि अब आप पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, टेलीकास्टिंग भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जिसने जो सेकंड रोल है वो उसकी richness of marketing communication increased। और एक और भी चीज़ है जो शायद हम तीसरे में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस। ये जो आपके मोबाइल फोन जो है वो भी इंफॉर्मेशन डेंसिटी बढ़ाता है विद रेफरेंस टू के जो आपका सोशल मीडिया जो बात करता है ना, एक तो अभी नीचे हम बात करेंगे सोशल टेक्नोलॉजी की, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से भी जो प्रोडक्ट्स के जो कंटेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। सो नंबर 3 जो कि ओवरलैप भी है, इंफॉर्मेशन इंटेंसिटी ऑफ मार्केटिंग प्लेस हैज एक्सपेंडेड। यू कैन हैव अ पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, यूबिक्विटी, ग्लोबल रिचनेस, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सोशल टेक्नोलॉजीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये हम इनको 3 कैटेगरी के अंदर प्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन 3 कैटेगरीज के अंदर जो है 3 ब्रॉड इम्पैक्ट्स जो है, जो ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी की जो डायमेंशंस हैं उसका पड़ा है आपकी ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरे की हम बात कर रहे थे सोशल टेक्नोलॉजी। अब इवन द कंटेंट्स आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड, contents are being contributed by whom? By the social media. Social media is providing the contents और उन contents को आप जो है वो आप उसको कैश कर सकते हैं, आप उसको कैश कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपके लिए सोशल मीडिया जो है मार्केटिंग करता है बेसिकली। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी। ठीक, और वैसे मेरा पर्सनली ख्याल ये था कि इसको हम चौथा भी लेकर जाते और वो था हमारा मोबाइल फोन्स, लेकिन that is also a मोबाइल प्लेटफॉर्म जो है ना, आप इसको चौथा भी ऐड करवे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और देयर माइट बी ए चांस कि जो 2013 की बुक है उसमें वो चौथा आइटम ऐड भी किया हो, क्योंकि ये 2011 वाली है। और मोबाइल रेवोल्यूशन जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है 3G 4G का, वो भी रिसेंटली 2 सालों के अंदर आया। सो द रेवोल्यूशन इन द इंटरनेट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। अब हम वो जो स्टैब्लिश हो चुके हैं ना 4 चीज़ें, हम उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है वेब ट्रांजैक्शन लॉक्स, नंबर 2 ट्रैकिंग फाइल्स, नंबर 3 डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग, एंड नंबर 4 है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम CRM भी कहते हैं। ओके, वेब ट्रांजैक्शन लॉग्स, इसको हम इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं, बट आई विल रिपीट इट हियर क्विकली सो डैट कि हम उसको सम अप कर सकें। बिल्ट इनटू अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर records user activity at website, or web trends is a software that you can use to analyze the activity of the client, that the client has spent certain time on your website. All those activities were logged, and then later on there are very, very powerful tools available, and using those tools we can analyze and we can extract some very useful information that is useful with respect to the marketing के purposes के लिए। Okay, so this log, when especially combined with 2 additional components, वो कौन कौन से हैं? registration forms and shopping cart database।
Registration form जो है, you usually offer a client, when the client purchases something, then you throw a form to that particular client through your website, and you gather the personal information, that is the name of the person, address, the zip code, the email, and some other optional information, that what are your interests and your tastes. It is optional if the user is willing to share that. So it's mean that you have the behavior model, and then you have the personal information. Now with the help of this two combination, you can really target a specific client. एक मैंने थोड़ी सी टच किया था पिछली स्लाइड्स के अंदर कि देयर आर टू डिफरेंट वेज. एक तरीका है कि जनाब आप प्रोडक्ट को बीच में रखकर उसको मार्केट करवें, प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को मार्केट करें, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है. एक नया कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट बेस्ड मार्केटिंग करें जनाब. आप देखेंगे क्लाइंट्स, कितने क्लाइंट्स हैं. देयर आर, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अफ्रीकन अमेरिकन और स्पेनियन अमेरिकन जो हैं, आपके पास बहुत बड़ा क्लाइंट सेगमेंट मौजूद है, $1 ट्रिलियन का सेगमेंट जो है आपके पास मौजूद है. आप प्रोडक्ट को छोड़ दें, आप उनकी नीड्स को देखें और उनकी नीड्स के मुताबिक आप उनको प्रोडक्ट्स ला कर दें. एक तरह अपनी प्रोडक्ट्स रखें और उसको मार्केट करें. आप क्लाइंट को सामने रखें और प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई करना शुरू कर दें. तो दैट इज अनदर मॉडल, और ये बेसिकली इमर्ज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं. देन shopping cart database that captures all the item selections purchases made by the client. क्लाइंट का बिहेवियर भी आपको पता चल गया, क्लाइंट करता क्या है, उस क्लाइंट के मिलियंस ऑफ क्लिक्स आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, उसका पूरी साइकी आपके पास मौजूद है, उसका आपके पास डेमोग्राफिकल मॉडल्स जो हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं. फिर वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बेचारे ने आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी वो भी आपके पास मौजूद है, और फिर वो जो शॉपिंग करता है उसकी नीड्स जो हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं. सो व्हेन यू कंबाइन दिस रजिस्ट्रेशन एंड शॉपिंग इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द बिहेवियर, और वो जो लॉग है उसकी क्लाइंट की जो है, एंड यू अप्लाई सर्टन वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर लाइक वेब ट्रेंड्स, then you can extract some very useful information, or that useful information is basically the जो मैं बता रहा हूँ transaction logs coupled with the registration form and shopping cart, or you can extract the treasure of marketing information. ये खजाना है मार्केटिंग मार्केटर्स के लिए, क्योंकि इसकी बेसिस पे you can ask number of questions, and based upon the answer to those questions you can जनाब what you can do, you can target those. मैंने बताया ना कि मॉडल भी आप चेंज कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल किन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं इनको मिला के. नंबर 1, व्हाट आर द मेजर पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेसेस, कि ये लोग कौन कौन सी चीजें परचेज करते हैं डे टू डे, इनकी वीकली परचेजेस क्या है, मंथली परचेजेस क्या है, एनुअल परचेजेस क्या है, कब कब ये बल्क परचेज करते हैं, जब ये बल्क परचेज करते हैं तो कौन कौन से आइटम परचेज करते हैं, उनको जाना ही ना पड़े. वंस दे कम ऑन योर वेबसाइट, आपको पता है कि ये क्लाइंट के इस सीजन में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप अपनी साइट्स के ऊपर दे दें सीधी सीधी. अब प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हम क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, और क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट्स जो है ना हम लेकर आ रहे हैं. फिर आफ्टर होम पेज वेयर डू यूजर गो फर्स्ट, अब इस क्लाइंट को सर्चिंग भी करनी है, वो भी बिहेवियर आपके पास मौजूद है कि वो जो आपका कंज्यूमर है वो मेन वेबसाइट पे आता है, फिर वो किस सेकंड पेज कौन सा एक्सेस करता है, थर्ड पेज कौन सा एक्सेस करता है. आपके पास पूरा उसका मूवमेंट रिकॉर्ड जो है विद द फॉर्म ऑफ द लॉग अवेलेबल है. आप उसको यूटिलाइज करके उसकी पसंद की प्रोडक्ट्स को उन पेजेस के ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं डायनेमिकली. ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना कि डायनेमिकली भी आप पेजेस जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ट्रैक 2 के अंदर. सो व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ठीक है, उसके इंटरेस्ट की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, उसको टारगेट किया जा सकता है. हाउ कैन वी इंप्रूव द वेबसाइट ईजियर टू यूज, अट्रैक्टिव डिजाइन, एनकरेज विजिटर्स टू परचेज. अब आप जब एक सेगमेंट को टारगेट करने जा रहे हैं ना, एक ग्रुप को टारगेट करने जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड यू हैव गॉट द ट्रेरी ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, तो फिर आप उसको मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी.
technology, utilizing the technology of the transaction log embedded with the registration form and the shopping cart. सिर्फ अभी हमने इनको combine किया है, ठीक है. Where are the visitors coming from, what they want, ये भी इंफॉर्मेशन हम उससे निकाल सकते हैं कि जनाब इस हफ्ते में कितनी प्रोडक्ट्स आपकी सेल आउट हो रही हैं, आप उसकी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं. और ये जनाब कौन से एरिया के सेगमेंट के लोग हैं, वो क्या परचेज कर रहे हैं, ताकि आप क्विकली आप उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको आप रिवाइज कर सकें. देन यू कैन हैव अ पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड मैसेजेस. पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज मैसेजेस डायरेक्ट ही अप्रोच करवें. क्योंकि जनाब वो अभी आगे आएगा CRM के अंदर, और उसके अंदर आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है. लेकिन यहाँ पर अगर CRM नहीं भी है तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके शॉपिंग कार्ट और उसके बिहेवियर की मदद से वी हैव एक्सट्रैक्टेड सर्टेन इंफॉर्मेशन. सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1. यूजिंग द वेब ट्रांजैक्शन लॉग यू कैन डू. ये हमारा टॉपिक जो है कि रेवोल्यूशन जो है इंटरनेट मार्केटिंग का विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं. मेरा ख्याल है सफिशिएंट टाइम कि मैं एटलीस्ट ट्रैकिंग को कवर कर लेता हूं. एक टॉपिक हम कर, नंबर 2 ट्रैकिंग फाइल्स भी हम कवर कर लेते. नंबर 2 इज द ट्रैकिंग फाइल्स दैट अलाउ द यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटीज टू बी ट्रैक्ड एज दे मूव फ्रॉम साइट टू साइट. वो एक तो है ना ट्रांजैक्शन लॉग है, अब हम उसके ब्राउजिंग एक्टिविटीज को एक साइट से दूसरी साइट पे, वो तो आपकी अपनी साइट के ऊपर ट्रांजैक्शन लॉग होती है ना. जब ट्रैकिंग की बात करते हैं तो फिर वो किस किस साइट के ऊपर जाता है. अब वहां पे फेयर भी है और अनफेयर भी है, दोनों ही काम जो है ना वहां पर मौजूद हैं. 4 टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग फाइल्स अवेलेबल विच आर कुकीज. Number 2, use Adobe Flash small text files, for example, जिसको आप यूज कर सकते हैं कुकीज को. और दूसरा है कि एक और तरह की कुकीज है जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कुकीज, जिसको फ्लैश कुकीज भी कहते हैं, जैसा कि एडोब फ्लैश कुकीज हैं. तीसरा है जनाब आपका बग्स, और एक चौथा भी आइटम है जो कि शायद मुझसे मिस हो गया है यहाँ पर. एनीहाउ, सो दीज आर द ट्रैकिंग फाइल्स. आई थिंक आई शुड आई स्टॉप हेयर. मेरा ख्याल है कि आई शुड स्टॉप हियर, क्योंकि स्टिल आई हैव क्वाइट अ फ्यू स्लाइड्स दैट आर लेफ्ट. तो बहुत फास्ट में चला जाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो बेहतर ये है कि हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं. लेकिन मैं इसको जरा सम अप कर लेते हैं. हम यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि द रेवोल्यूशन इन द इंटरनेट मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज. पहले हमने देखा कि टेक्नोलॉजीज ने रेवोल्यूशन कैसे लेकर आए, वो हमने सारी चीजें डिस्कस की. फिर अब हम देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी की अंदर अभी बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके स्ट्रेंथ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग अवर प्रोडक्ट्स. और उसके लिए मैंने कहा कि वेब ट्रांजेक्शन लॉग्स को हमने डिस्कस किया, और मैंने भी स्टार्ट किया था ट्रैकिंग फाइल्स, जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. लेकिन हम थोड़ा सा दिखाई दी है तो उसको देख ही लेते हैं. कुकीज जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. कुकीज क्या है? स्मॉल टेक्स्ट फाइल प्लेस्ड बाय द वेबसाइट. आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो आपका जो सर्वर होता है वो लोकल कंप्यूटर जो होता है क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर अपनी एक एंट्री कर देता है, और वो एंट्री जो है ना बड़ी इंटेलिजेंटली करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट आपकी साइट पर आए तो उसके जो ऑलरेडी उसने एरियाज जो विजिट किए हुए हैं उसके रेफरेंस से उसकी डिटेल्स जो है ऑलरेडी वहां पर मौजूद हो, और उसको पता हो कि ये चीजें मैं ऑलरेडी देख चुका हूं और उससे रिलेटेड है. पर्पस उसका ये है, लेकिन उसको थोड़ा सा यूज और मिस यूज किसी और तरीके से करते हैं. इसका साइज छोटा होता है, 1 KB तक का, 1024 बाइट्स होती हैं बेसिकली. एंड इट अलाउज द वेब मार्केटर्स टू गैदर द डेटा, और उसको वो गैदर करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में उसको यूटिलाइज करते हैं. कंज्यूमर में डिलीट द कुकीज. ब्राउजर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुकीज को डिलीट भी कर सकते हैं, और जब आप कुकीज को डिलीट कर देते हैं तो सारे के सारे एनालिसिस जो है, जो वेब ट्रेंड कर रहा होता है, वो सारे के सारे गड़बड़ हो सकते हैं. और उसके लिए फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन है कि और तरह की कुकीज जिसको कि कंज्यूमर डिलीट ना कर सके, जिसकी की लाइफ ज्यादा हो, वो हम चाहेंगे कि उसके अंदर आ जाए. फिर हम कुछ थोड़े से बीकन्स मीन्स के कुछ बग्स जो हैं, मैलवेयर जो है मार्केटर्स जो हैं
وہ بھی کرتے ہیں جو کہ میں کہتا ہوں نیگیٹو ٹیکٹکس ہے. تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ اسٹاپ ہیئر. میں اسی سلائیڈ سے دوبارہ اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر, اور وہاں پہ پھر ہم باقی کے چیپٹر جو ہے پارٹ 3 کے اندر لے جائیں گے اسے, جس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ we'll continue from the marketing chapter number 6 in the next lecture. تو تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نے کے بعد.